Today we are starting with civics section, chapter 1, power sharing according to the new syllabus. Now we know that democracy में किसी भी एक organ of government में power नहीं लाई करती, different उसमें एक होके गुजरना पड़ता है. There is a proper structure of democracy. किसी के भी पास full power नहीं हो सकती है. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. अब these are the three structures which are very important in a democracy. Now we all start this chapter with stories of Belgium and Sri Lanka. हमें उसका democracy and form of government और history के बारे में पता चलेगा. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. कि both the stories इसमें हमें पता क्या चलेगा कि democracies ने कैसे handle करा for power sharing. This story yields some general conclusions about the need for power sharing in democracy. Now coming to Belgium and Sri Lanka. First we will start with Belgium. Now Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. And it has a population of little over than 1 crore, about half that of Haryana. मतलब area में भी it is small and population में भी it is small than one of our states, Haryana. और as you can see काफ़ी borders share करता है with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. तो अब इसमें different cultures होंगे obviously because its borders suggest and it's a small country. The ethnic composition of this country is very complex. Now ethnic का मतलब होता है a social division based on shared culture. एक social division जो एक shared culture. अगर if I am from a different culture and you are a different culture and we live in a democratic country, then culturally we will be different but not socially. But the definition of ethnic क्या कहते हैं? Definition of ethnic कहते हैं एक हल्का सा social division रहता है on the basis of only and only culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or culture or both. They need not always have the same religion or nationality. Now people belonging to different cultures वो जब relate करते हैं एक दूसरे से तो they believe in their own language. Now we have different cultures in our India, like we have many cultures, like we will have Gujarati, Marathis, so they all are Indians and Hindus. I am using this just for an example. तो इसमें क्या होता है, they don't speak the same language, तो they are culturally different. और अगर वो डिमांड करने लग गए कि we need Gujarat as a separate state or country because we speak Gujarati, no, that is not. But so कहीं ना कहीं they are socially different. So you can get an idea about Belgium कि काफ़ी different languages, काफ़ी different cultures. But अगर tolerance ना हो, in India there is religious tolerance, there is cultural tolerance at an extent. So when people are not tolerant, these issues occur. The ethnic composition of this small country is very complex. On the country's total population, 59% in the Flemish region and speaks Dutch language. अब जो 59% है वहाँ के लोग वो Flemish region में रहते हैं and they speak Dutch as a language. और जो 40% हैं वो Wallonia region में रहते हैं and they speak French. The remaining 1% of the Belgians speak German.
In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. तो बट कैपिटल में देयर इज़ उल्टा, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी के 20% डच. वी हैव एन चार्ट ओवर हेयर ऑन द मैप. जो येलो कलर का दैट्स द फ्लेमिश रीजन, द डच स्पीकिंग रीजन. And in the red part, or the only red part, Walloon, the French speaking. But in the Brussels, the capital region, there are 80% French वाले and 20% Dutch वाले. दो जिस येलो रीजन में है, द फ्लेमिश रीजन, दैट इज डच स्पीकिंग. सो ऑन द रिमेनिंग 1% दिस साइड में, दैट इज द जर्मन स्पीकिंग. सो यू कैन गेट एन आइडिया दैट देर आर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो बहुत प्रॉब्लम भी होती होगी. अब द माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग थी वो रिच थी और पावरफुल भी थी. So this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच भी थी और पावरफुल थी. अब इसी चक्कर में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, द फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते थे, तो उनको लगा कि यू नो दे वर रिजेंटेड, दे वर जेलस कि ऐसा क्यों. बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. अब जो डच स्पीकिंग थे उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन थी वो काफ़ी बाद में मिली. दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. सो इन अ स्पैन ऑफ 10 years, दैट इज़ फ्रॉम 1950s to 1960s, कम्युनिटीज़ के बीच में, द टू मेन कम्युनिटीज़, दैट इज़ द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में काफ़ी टेंशन्स हो गई. एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. इन द कैपिटल रीजन दिस टेंशन वॉज एक्यूट, दिस एंड स्मॉल, एक्यूट का मतलब स्मॉल. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. अभी हमने जैसे मैप में देखा that जो येलो रीजन है, दैट इज़ द फ्लेमिश रीजन, द डच स्पीकिंग रीजन, उधर मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग लोग हैं. पर कैपिटल द ब्रुसेल्स में उल्टा है. 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग एंड द रिमेनिंग 20% आर डच स्पीकिंग. So Brussels में there was a special problem that the majority and minority one. Now let us compare to this situation in another country. Now we get over. अब हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा कि how tensions emerged due to the powerful ये मतलब let me speak in हिंदी. मेन रीज़न था रिजेंट होने का द डच स्पीकिंग. वाई वर दे रिजेंटफुल? बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन उनको काफ़ी बाद में मिला, उनको ये एडवांटेज नहीं था. तो इस चक्कर में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में टेंशन्स हो गई, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स हो गई और ये इंटरनल टेंशन थी. नाउ ब्रुसेल्स में देयर वाज एन उल्टा प्रॉब्लम बिकॉज उसमें उल्टा था. जहाँ डच के रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे ब्रुसेल्स में, एंड द माइनॉरिटी वर इन द कैपिटल इटसेल्फ द डच. नाउ कमिंग टू श्रीलंका, विच इज़ एन आइलैंड नेशन just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers and the Tamil speakers. Sinhala speakers were the majority. As you can see, 74% Sri Lankan population ki was the Sinhala, and the remaining 80% were of the Tamil speakers. Not the remaining, but 18% Tamil speakers. अब Tamil speakers में भी दो सब पार्ट्स थे. कौन से थे? एक था इंडियन तामिल्स
एंड थे एक श्रीलंकन तामिल्स। अब जो श्रीलंकन तामिल्स थे दैट इज़ द 13%, वो कंप्राइज करते थे तमिल स्पीकर्स में ही, एंड द रेस्ट हुज forefathers केम फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड द इंडियन तामिल्स। अब इंडियन तामिल्स को कौन बोलते थे? जो जिनके forefathers इंडिया से आए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। नाउ कमिंग टू दिस मैप, in this map we can see that Sinhalese are the majority, the yellow part. The orange part are the Sri Lankan Tamil, जो श्रीलंका के Tamil speakers थे. Then the Indian Tamil, the brown part, and the Muslims are scattered in this region. Now Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the east of the country. As you can see, north and east of the country में वो ज़्यादातर inhabited है. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. अब जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स थे वो क्या है? बुद्धिस्ट. और जितने भी तामिल थे वो हिंदूज या मुस्लिम्स थे. There are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala. अब 7% Christians थे वो both थे, that is Sinhala and Tamil. Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantages of its numeric majority and force its will on the German and French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy portion of the country. अब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप माइनॉरिटी में हो और कोई और मेजॉरिटी में, तो जो मेजॉरिटी में है वो आराम से पावर ले सकता है एंड इट कैन इम्पोज इट्स मेजॉरिटी इट ऑन द माइनॉरिटी. अगर हम जर्मन उधर बेल्जियम का एग्जांपल लें तो वो जर्मनी स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पे अपना मेजॉरिटी दिखा सकता है और वहाँ की पावर ले सकता है, पुटिंग देम ऑन अ डिसएडवांटेज. और जो मेजॉरिटी में ऑब्वियसली दे आर ऑन एन एडवांटेज. और ये चीज़ क्या करेगी? वो कन्फ्लिक्ट मतलब जो लड़ाई है, इंटरनल लड़ाई है, वो कम्युनिटीज़ को और दूर करेगी. दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. अब ये चीज़ बहुत एक मेसी पार्टीशन लीड कर सकती थी कंट्री का. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. अब ब्रुसेल्स दैट इज़ द कैपिटल. अब कैपिटल यूजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे होते हैं. तो अब इफ़ सपोज दिस हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये क्या करेगी? तो ये ब्रुसेल्स को लेना चाहेगी. तो अगर जब ब्रुसेल्स को लेना चाहेगी तब मतलब इट विल बी वेरी मेसी because the Dutch speaking and the French speaking both will want Brussels, the capital. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. अब जो श्रीलंका का है that is a 8:2 ratio, like 80% से ज़्यादा there are Sinhala speakers while the remaining are Tamils. सो अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें वो अपनी ज़्यादा पावर, अपनी मेजॉरिटी दिखा सकते हैं ऑन द माइनॉरिटी. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन दीज कंट्रीज. नाउ फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, we will just take a quick recap, and if you guys have any problem during the video, you are free to ask. कोई मेरे से जल्दी यूजुअली डाउट पूछता नहीं है. वाई? यू आर फ्री टू आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड योर डाउट विल बी आंसर्ड. वी हैड डन ओनली बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल. बेल्जियम में द country is a small country which is divided between the French and the Dutch speaking, with German population as very less. Here is an example also, and the orange is Brussels, the capital.
उसमें 59% जो थे वो डच स्पीकिंग थे और जो 40% थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 1% ऑफ द बेल्जियम्स आर द जर्मन स्पीकिंग। अब इसमें देर इज़ अ कम्युनिटी प्रॉब्लम बिकॉज वहाँ पे रिजेंट भी ज़्यादा हो गया था ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अब ऐसे ही एक कंट्री है श्रीलंका विच इज़ डिवाइडेड बट विद अ मच मोर डिफरेंस इन द पॉपुलेशन, in the number of the population as in the communities, like 84% थी हमारी सिन्हालीज and the कितना परसेंट था पॉपुलेशन का डिफरेंस, सॉरी आई एम सेइंग 74 and the Tamil speakers are 18%, 74% and 18% का है। approximately it is an 8-2 but not that। तो हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड थी श्रीलंका की बिटवीन 74% एंड 18%, सिन्हाला स्पीकर्स बीइंग द 74 एंड द तमिल्स 18%। अब जो तमिल स्पीकर्स थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। अब तमिल स्पीकर्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, दैट इज़ द इंडियन तमिल्स एंड द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो तमिल बोलते थे एंड दे आर इंडिजिनस टू श्रीलंका, एंड द सेकेंड बीइंग द इंडियन तमिल्स जो जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे तमिल में श्रीलंका में सॉरी काम करने के लिए। और जो श्रीलंकन तमिल थे वो नॉर्थ और ईस्ट साइड ऑफ श्रीलंका में रहते थे। इंडियन तमिल्स भी कह सकते हैं स्कैटर्ड नहीं थे बट दे आर इन द सेंट्रल लोअर रीजन and Muslims were scattered। अब अभी तक हम ये कह सकते हैं कि there could be a very bad ending that could lead in partition and civil wars। Now we had done till here, we will continue in the next video। We are starting with majoritarianism in Sri Lanka। अब हमें पता है कि मेजॉरिटी वधी सिन्हाली 74%। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब जो लीडर्स थे सिन्हाला गवर्नमेंट के, उन्होंने सोचा कि डोमिनेंस क्रिएट करा जा सकता है ऑन द गवर्नमेंट क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। And as a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। अब as a result जो democratically elected government थी उसने क्या करा, उसने majoritarian measures अप्लाई करे to create Sinhala supremacy कि श्रीलंका में अब Sinhala supremacy क्रिएट करी जा सके। और 1956 में an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब 1956 में क्या करा गया था, एक पास निकाला गया था जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। अब जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा मतलब आप डिसरिगार्ड कर रहे हो तमिल स्पीकर्स और तमिल लैंग्वेज को। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ भी अप्लाई कर दी थी कि जो यूनिवर्सिटी में अब एप्लीकेंट्स थे उनको मतलब they were biased to the Tamil speakers बिकॉज अब वो एक सुप्रीमेसी लाना चाहते थे, मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश करके कि वो सिन्हाला के फेवर में हो। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी वो मेनली फेवर्ड किसके लिए थी, सिन्हालास के लिए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेशन हुआ जो प्रोटेक्ट करेगा और फॉस्टर करेगा बुद्धिज़्म को। और बुद्धिज़्म किसका रिलीजन था, सिन्हालीज।
All these government measures coming one after the another gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे जो एक के बाद एक लाए जा रहे थे, तो वो एलियनेशन, फीलिंग ऑफ एलियनेशन का मतलब होता है दैट वेयर यू डोंट बिलोंग. अगर आपको कई बार लगता है ना कि आप इस जगह बिलोंग नहीं करते, मतलब आप इस जगह, आपको यू आर नॉट फ्री, आप थोड़ा सा रुक के रहते हो, यू आर नॉट इंक्लूडेड, एक सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस होता है ना, तो वो उनको फील नहीं हो रहा था. दे वर फीलिंग एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तामिल्स. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to the language and culture. अब उनको लगता था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मेनली बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स लीड करते थे, वो रिगार्ड ही नहीं करते थे उनकी लैंग्वेज को, ना उनके कल्चर को. और दिस फर्दर द सेंस ऑफ एलियनेशन. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. अब उनको क्या लगने लग गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा वैसे लगने नहीं लग गया था, तो ऐसा था क्योंकि वो मेजॉरिटेरियन रूल बना रहे थे वहाँ पे. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. अब गवर्नमेंट जो थी वो political rights उनको नहीं दे रही थी equal. Discriminated against them in getting jobs and other opportunities. अब वो discrimination भी कर रहे थे कि किसको jobs देने चाहिए, किसको यूनिवर्सिटी में application का approval देना चाहिए and other opportunities. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट. उनके इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, इग्नोर करा जा रहा था और सिन्हालास को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी. नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली एंड डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.